Hello, my dear friends. Once again, myself Alimuddin Sheikh Qadri, and my YouTube channel is Alimuddin Sheikh Qadri. My dear friends, today we will have the discussing here the living word. Very interesting and very intellectual points. What are the living word? My dear students, first of all, I wishes to all of you a Merry Christmas. My dear friend, there is a very important point I have told to you. The living word. The living word. There is very short sentence. Very short sentence, but their meaning is not be short. Their meaning is not be short. Their meaning is very high, very large. Within the case of this view, we have discussing the different points. For just as like all of you have seen this here, the living word. My first point, the living word is a lesson. Their point is what is living. Second point, characteristics of living beings. Means what are character of living beings? What are character of non-living beings? And third point, a living beings is an open system. A living beings is an open system. Next, anabolic reaction and catabolic reaction. So my dear friend, today myself Alimuddin Sheikh Qadri, I am discussing here a very interesting point. So what is the living? What is living? Very simple point. If any persons have told to you, can you live alive or dead? What is your answer? You are alive? I am alive? What is symptom of living things? Our growth are increasing, body physical development are increasing, our mental ability are increasing, physically, mentally, socially, well-beings. Means our health is a proper way in nature. Our health is a proper way in nature. If our health is not the proper way in nature, it means our body is suffering from any kinds of diseases. Means I am not be disease free person, I am suffering from diseases. But we are living things. And chair, wood, pen, so as like this one is not be living thing, this one is a non-living things. Why? Because of their shape, size, structure have not been increases. It is a fixed. It is a fixed. And those types of animals and those categories of animals, their shape, size and structure are increases. Their all body activities are doing the same work, doing the different types of work in their own body. This is the simple phenomena, simple function, simple characteristics of these living things. So my dear friends, here living things. What is living things? All categories of animals are all categories of apes, birds, fishes. All of you know their shape, size and structure are increases. They have locomote to one place to another. They have locomote to one place to another way. Their body respiration are clearly doing the work. Circulatory system are doing the work. Muscular system are active. They are doing the work. Locomotory system are doing the work. Reproductive system are doing the work. All types of systems, those are simply occur in our body, they have proper doing work in nature. They have proper doing work in nature. They have proper doing work in our body.
So these symptoms are living beings. So we are simply be called, we are living things. Is it clear? We are living things. अगर किसी ने आपसे पूछा कि आप जीवित हैं या मृत हैं, आप लिविंग थिंग्स हैं या नॉन लिविंग थिंग्स हैं, व्हाट इज योर आंसर? आपका आंसर क्या होगा? मैं लिविंग थिंग्स हूं भाई। वो बोलेगा सिम्टम बोलो, क्या लिविंग थिंग्स के सिम्टम क्या होते हैं? माय डियर फ्रेंड्स, लिविंग थिंग्स के सिम्टम मैंने बताया आपको कि जिसके अंदर विकास की क्रिया हो, विकास की क्रिया हो, बॉडी फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सोशली डेवलपमेंट, इस तरह का डेवलपमेंट का प्रोसेस हो तो हम इनको बोलेंगे कि लिविंग थिंग्स में आ रहे हैं, लिविंग थिंग्स हैं। लेकिन इस तरह की एक्टिविटी उनके बॉडी में अगर नहीं है, बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम वर्क कर रहा है, रिस्पिरेटरी सिस्टम वर्क कर रहा है, लोकोमोटिव सिस्टम वर्क कर रहा है, मस्कुलर सिस्टम वर्क कर रहा है, स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र हमारे बॉडी में है, स्केलेटल सिस्टम है, तो ये सब सिम्टम्स जो सिस्टमेटिक पोजीशन के इन नेचर और बॉडी में, हमारी बॉडी में जितने भी जो सिस्टमेटिक पोर्शंस हैं, वो सिस्टमेटिक वे से मूवमेंट कर रहे हैं, एक नियत रूप से गति कर रहे हैं, उनमें मूवमेंट देखा जा रहा है। दिस इज ए सिंपल फेनोमेनन ऑफ लिविंग थिंग्स। भाई अगर कोई पूछता है कि हम जीवित है तो इसका प्रमाण दीजिए, इसका प्रमाण क्या है? डॉक्टर सर्टिफाइड करेगा आप जीवित हो तब आप मानोगे? नेवर। वी आर मेंटली, सोशली एंड फिजिकली वेल बीइंग्स। दिस इज ए प्रॉपर नेचर ऑफ गुड हेल्थ। एक स्वस्थ व्यक्ति की सबसे इंपॉर्टेंट नेचर होता है, गुड हेल्थ का नेचर होता है, और ये सिम्टम ऑफ द लिविंग थिंग्स है। जैसे मैंने अभी आपके सामने एक एग्जांपल शो किया कि ये पेन है, अब पेन का शेप, साइज, स्ट्रक्चर, ये कोई भी डेवलपमेंट का प्रोसेस इसमें नहीं हो रहा है। जब तक हम इससे राइटिंग नहीं करेंगे, राइट नहीं करेगा। जब तक हम इससे कोई वर्क नहीं लेंगे, वर्क नहीं करेगा। इसमें रिस्पायरेशन नहीं है, इसमें लोकोमोशन नहीं है, इसमें मूवमेंट नहीं है, इसके मस्कुलर सिस्टम नहीं है, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, ये सारे सिस्टम इसमें एब्सेंस है। तो हम कह रहे हैं दिस इज नॉन लिविंग थिंग्स। चेयर, टेबल, डेस्क, बेंच, दिस इज नॉन लिविंग थिंग्स। एंड ऑल कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स, मैमल्स, एप्स, फिशेस, these are simply भी belongs to the living things। इनको हम लिविंग थिंग्स में कहेंगे क्योंकि इनके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज, सारे नेचर देखे जा रहे हैं। सो माय डियर फ्रेंड, दिस वन इज द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। या मैंने लिविंग थिंग्स क्या होते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, इसके विषय मैंने आपको बताया, और बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही सिंपल टॉपिक से, बहुत ही सिंपल प्रोसेस से मैंने ये क्लियर कर दिया आपके सामने कि लिविंग क्या है और नॉन लिविंग क्या होते हैं। अगर हम बायोलॉजिकल डिफिनेशन के अंतर्गत जाएं, एक जीव विज्ञान की परिभाषा के अंतर्गत जाएं, तो सिंपली वी हैव टोल्ड यू दिस इज अ नेचर ऑफ लिविंग थिंग्स, those who are mentally, socially and physically well beings, and they have doing the proper way in nature, they have doing the all kinds of work proper in nature। इनमें सभी प्रकार के गतियां, कार्य, और यहां तक कि आप देख रहे हैं जितने भी अंग तंत्र हैं, ये सभी के सभी ऑर्गन सिस्टम, ये सभी के सभी फुल्ली वर्क कर रहे हैं। हमारा लीवर वर्क कर रहा है, हमारी किडनी वर्क कर रही है, हमारा हार्ट वर्क कर रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम चल रहा है, मस्कुलर सिस्टम वर्क कर रहा है। दिस इज द नेचर ऑफ लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स मैंने बताया कि ये सारे पॉइंट्स एब्सेंस होते हैं। हमारे बॉडी का फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, तो मैंने कहा कि लिविंग थिंग्स हैं। एंड अनदर वे, अगर मैं कहूं कि नॉन लिविंग थिंग्स की क्या डेफिनेशन होगी, तो ऑल ऑफ यू नो टेबल, चेयर, डेस्क, बेंच, पेन, और एनी काइंड्स ऑफ woods, this one is the non-living things। My dear friend, plants are also a living things because of they are developing their own shape, size and structure।
but they have not been locomoted. They are locomoted only erectially, सीधे गतियां उनमें हो रही हैं। गति का अभिप्राय से आशय आप मत समझिए कि वन प्लेस टू अनदर, नो नेवर, प्लांट हैव नेवर मूव टू वन प्लेस टू अनदर। पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते हैं। हाँ, उनमें फिजिकल ग्रोथ जो होती है वो देखी जाती है, उनकी लंबाई में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाती है। आप आम का छोटा सा पौधा लगाते हो, लेकिन यही छोटा सा पौधा धीरे 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 बड़ा होकर के एक बड़ा पौधा बन जाता है। ये छोटा पौधा ये बड़ा हो गया, इसमें विकास की क्रिया देखी जा रही है। दिस इज द नेचर ऑफ लिविंग थिंग्स। आप ऐसा कभी मत कहिएगा कि पौधे नॉन लिविंग, दे हैव मेक देयर फूड इटसेल्फ, वे अपना भोजन तो खुद बना भी ले रहे हैं, बट वी आर नॉट बी मेक देयर फूड इटसेल्फ, वी हैव नॉट बी मेक देयर फूड इटसेल्फ। हम अपना भोजन स्वयं नहीं, वी आर नॉट बी ऑटोट्रॉप्स, वी आर हेटेरोट्रॉप्स। हम क्या हैं? हेटेरोट्रॉप्स हैं। रीजन मैंने दिया कि हम पेड़ पौधों के द्वारा बनाए गए खाद्य पदार्थों का भक्षण करते हैं, उनको ग्रहण करते हैं, इसलिए मैंने कहा कि हम नॉन लिविंग थिंग्स हैं। और इनके नेचर के अतिरिक्त अगर हम देखें तो हमने कहा कि नॉन लिविंग है। आगे आइए देखते हैं अगला पॉइंट हमारा क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग्स, सजीवों के लक्षण क्या है? सजीवों के लक्षण में आपने देखा है कि इनमें सुसंगठित सुव्यवस्थित बॉडी स्ट्रक्चर होता है। किसी भी जीव को आपको दिखाया जाए, माय डियर फ्रेंड, आप आसानी पूर्वक उसको पहचान करके बता सकते हैं कि इस कैटेगरी का एनिमल, ये काऊ है, ये बफेलो है, ये डॉग है, ये कैट है, ये रैट है, और ये बर्ड्स हैं। आप बर्ड्स को एनिमल्स में आप कैट नहीं कर सकते, आपने वो फिजिकल नेचर को पहचानने की क्षमता है, आपने उसके आइडेंटिफिकेटिंग फीचर से, उसकी पहचान से आपने क्लियर कर लिया कि कौन किस कैटेगरी का एनिमल है। तो इस तरह से आपने देखा कि मैंने सजीवों के लक्षण बताए आपको, ये सिम्टम हो गए कि इनके बॉडी स्ट्रक्चर जो होते हैं पूरी तरह से सुव्यवस्थित और सुसंगठित होते हैं। और सेकंड प्रॉपर्टी में आप देखते हैं लिविंग बीइंग्स इज एन ओपन सिस्टम। लिविंग बीइंग्स इज एन ओपन सिस्टम, यहां पर आप देख सकते हैं लिविंग बीइंग्स इज एन ओपन सिस्टम। व्हाट इज सिंपल मीनिंग ऑफ इट? सजीव एक खुला तंत्र है। सजीव एक खुला तंत्र है। अगर सजीव एक खुला तंत्र है तो इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस? सजीव एक खुला तंत्र है, ओपन सिस्टम। भाई ओपन सिस्टम इसलिए है क्योंकि इसमें प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर जो उत्पन्न कर रहे हैं, कंज्यूमर वी आर, हम लोग उसका उपयोग कर रहे हैं। डिकम्पोजर, बॉडी डेड होने के बाद उसको डिकम्पोज करते हैं, सड़ाने गलाने का वर्क करते हैं। और इसी में आप आएंगे, जब कंज्यूमर की श्रेणी में आएंगे तो प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, 3 टाइप्स ऑफ कंज्यूमर, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी कंज्यूमर जो हर्बीवोरस होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर जो कार्निवोरस होते हैं, टर्शियरी कंज्यूमर ऑलवेज भी कार्निवोरस। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड दिस पॉइंट्स इन आवर यूट्यूब चैनल अलीमुद्दीन शेख कौदरी इकोलॉजिकल सिस्टम। ऑलरेडी मैंने इस विषय में आपको अध्ययन कराया है अपने ही इस यूट्यूब चैनल पर, अलीमुद्दीन शेख कौदरी के यूट्यूब चैनल पर आप देखेंगे इकोलॉजिकल सिस्टम। इकोलॉजी क्या है मैंने आपको बताया है, मैंने आपको पढ़ाया है। सो माय डियर फ्रेंड, दिस इज द सेम एंड वेरी सिंपल पॉइंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। दिस वन द ओपन सिस्टम, यह खुला तंत्र है, इसमें किसी प्रकार का जीव अपने को आसानी से सरवाइव कर सकता है यदि वो क्लाइमेट को अपने के अनुरूप ढाल ले, अपने को क्लाइमेट के अनुरूप बना ले, तो वो आसानी से सरवाइव कर सकता है। दोस कैटेगरीज ऑफ एनिमल दे हैव नॉट बी सर्वाइव इन दिस करंट टाइम ऑफ पीरियड। It means they have not been fitted to their own climate, their this climate.
अगर कोई जीव इस पृथ्वी पर विलुप्त हो गया, नहीं है, नहीं पाया जा रहा है, तो इसका सीधा सा अर्थ यह होता है वह इस क्लाइमेट में अपने को बदल नहीं पाया। जो जीव इस क्लाइमेट में अपने को बदलने की क्षमता रखते हैं, पावर ऑफ एडाप्टेशन इन नेचर, वातावरण के बदलने के प्रति अनुकूलन, जैसे जैसे वातावरण बदलेगा वैसे वैसे हम उसके अनुकूलित होते जाएंगे। देखिए विंटर सीजन में हम क्या पहनते हैं, कोट पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं, ब्लेजर पहनते हैं, क्यों? अपनी बॉडी को प्रोटेक्शन देने के लिए और सरवाइव करने के लिए। जो क्लाइमेट चेंज हुआ है उस चेंजिंग क्लाइमेट को अपने फेवरेबल करने के लिए। अगर यही क्लाइमेट अनचेंज हो जाए और अपनी बॉडी को नेचर में ना जो है कन्वर्ट कर पाए, अब गर्मी के समय में आप देखेंगे, समर सीजन में आप देखेंगे, अगर आप आपसे कहें समर सीजन में आप ब्लेजर, कोट, पैंट, टाई, जैकेट, स्वेटर, ये सारी चीजों को आप पहनिए, तो कैन यू सर्वाइव? नो, नेवर। यू हैव नॉट बी सर्वाइव इन दोस क्लाइमेट। माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज द सिंपल वे आर सिंपल थिंग्स आर सर्वाइविंग नेचर। यह एक जीवों के अनुकूलित होने की क्षमता है, जिसके आधार पर आप अच्छी तरह से देख सकते हैं कि किस जीव में किस प्रकार के नेचर को ग्रहण करने की क्षमता होती है और किस प्रकार से वो सर्वाइव करते हैं, एलाइव करते हैं। अगर एलाइव कर रहा है, सर्वाइव कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो जीव बहुत ही सुचारू रूप से अपने को क्लाइमेट के अनुसार बदल करके चला ले जा रहा है। और जो जीव अपने को नहीं चला, इसीलिए इसको ओपन सिस्टम बोला गया। ओपन सिस्टम से अभिप्राय यह होता है कि उसने अपना भोजन बनाया, भोजन को किया। तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, मैंने बताया भी आपको। दोस कैटेगरीज ऑफ एनिमल, दे हैव मेक देयर फूड इटसेल्फ, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। दे आर सिंपली वी कॉल टू द ऑटोट्रॉफ्स, उसको मैंने ऑटोट्रॉफ कहा। एंड वी आर हेटेरोट्रॉफ, व्हाई? बिकॉज ऑफ वी आर नॉट टू मेक देयर फूड इटसेल्फ, हम अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। यदि मैं अपना भोजन स्वयं नहीं बना पा रहा हूं तो मैं कैसे कह सकता हूं कि हम लिविंग थिंग्स में हैं? वी आर नॉट बी, हम अपना भोजन नहीं बना पा रहे हैं, हमारे अंदर किसी प्रकार कोई मूवमेंट है, कोई एक्टिविटीज नहीं है। जितने सिम्टम मैंने बताए सारे सिम्टम हमारे अंदर नहीं पाए जा रहे हैं, तो वी आर नॉट बी कॉल्ड टू द लिविंग थिंग्स, हम लिविंग थिंग्स की श्रेणी में नहीं आ सकते। चेयर जिस वे में बनाई गई, टेबल जिस वे में बनाया गया, वो उसी नेचर में पड़ा है, उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। आज आपकी चेयर छोटी है, कल आपकी चेयर बहुत बड़ी हो जाएगी, कल आपका टेबल और बड़ा हो जाएगा। ये तो उसका डेवलपमेंट हुआ। क्या ऐसा होता है? नेवर, नहीं। तो हम ये कह देते हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स है, इसमें विकास की क्रिया नहीं होनी है, इसमें डेवलपमेंट की क्रिया नहीं होनी है, ये नॉन लिविंग। ओपन सिस्टम है ये, लिविंग थिंग्स ओपन सिस्टम, इसमें सारे पॉइंट्स आ रहे हैं, प्रोड्यूसर भी आ रहा है, कंज्यूमर भी आ रहा है, डिकम्पोजर भी आ रहे हैं, इसलिए हमने कहा कि ओपन सिस्टम है। और कोई भी एनिमल, चाहे फूड चेन से चल रहा हो, चाहे वो फूड वेब से चल रहा हो, चाहे वो खाद्य श्रृंखला से चल रहा हो, चाहे वो खाद्य जाल से चल रहा हो, अपनी लाइफ को सरवाइव कर रहा है। अगर अपनी लाइफ को सरवाइव कर रहा है तो हम उसे कह सकते हैं कि यह आसानी पूर्वक एक जीवों का लक्षण है, सजीवों का लक्षण है। This is simple character of living things. Since we are simply be called, this is the characteristics or nature or behavior of living things. And living things is open system. खुला तंत्र है ये। एक ऐसा तंत्र है, ये खुला तंत्र है, इसमें कोई भी जीव आसानी से सर्वाइव कर सकता है। अगर क्लोज सिस्टम होता तो अंदर कोई एनिमल इसमें इंटर करता तो सर्वाइव ना कर पाता। हम किसी अन्य ग्रहों पर जाते हैं, वहां पर अपने बॉडी एक्टिविटीज के एडाप्टेशन के थ्रू ऑक्सीजन लेने के लिए सिलेंडर लगाते हैं, उस तरह से क्लॉथ वेयरिंग करते हैं, तब कहीं अंदर प्लैनेट पर जाते हैं और वहां पर जाकर वहां के नेचर को की स्टडी करते हैं। हमारे साइंटिस्ट जो इस तरह से वर्क किए, तो पहले उन्होंने यह पता लगाया कि वहां का नेचर क्या है, वहां पर प्रकृति किस प्रकार की है। अगर वहां की प्रकृति के विषय में उन्होंने अध्ययन कर लिया
और ये जानकारी उनको मिल गई कि वहां का नेचर इस प्रकार का है, तो वहां पर वो जाते हैं। इस तरह से आपने देखा कि मैंने सारे पॉइंट्स आपके सामने क्लियर कर दिए। अगला आप देखिएगा एनाबॉलिक रिएक्शन। माय डियर फ्रेंड, एनाबॉलिक रिएक्शन में आप देखेंगे एनाबॉलिक रिएक्शन, एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। एनाबॉलिक anaerobic respiration, एनाबॉलिक रिएक्शन में आप अगर देख रहे हैं, एनाबॉलिक रिएक्शन में अगर आप देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं उपचयी क्रिया। उपचयी क्रिया मींस दोज टाइप्स ऑफ रिएक्शन दोज आर क्लियरली बी create their own products but never take to the oxygen। रिएक्शन तो चल रहा है, क्रियाएं तो चल रही हैं, लेकिन उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। एनाएरोबिक, एनाबॉलिक, एनाबॉलिक, यहां पर एनाबॉलिक रिएक्शन की मैं बात कर रहा हूं। एनाबॉलिक रिएक्शन जैसे आपने देखा प्लांट्स दे हैव डेवलप्ड देयर ओन शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर। पौधे अपने आकार, प्रकार, इन सभी के विषय में उत्तरोत्तर वृद्धि कर रहे हैं, लगातार गतियां हो रही है, इसमें विकास की क्रिया हो रही है, बढ़ रहे हैं ये। लेकिन क्यों? क्योंकि अपना भोजन ये स्वयं बना ले रहे हैं। आइए देखते हैं रिएक्शन को। यहां पर देखिएगा एनाबॉलिक रिएक्शन में 6CO2 प्लस 12H2O, 6CO2 प्लस 12H2O, कार्बन डाइऑक्साइड क्लाइमेट से लिया, H2O सॉइल से लिया, जमीन से लिया, इन प्रेजेंस ऑफ फोटॉन, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, एंड क्लोरोफिल, CHR, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ले लिया है और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसने अपना फूड फॉर्मेशन कर दिया। क्या बनाया इसने बना लिया ग्लूकोज। क्या बनाया? ग्लूकोज बनाया। माय डियर फ्रेंड, अब इसने ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर दिया और हमने आपको पढ़ाया इन द केस ऑफ ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल 1 mole of glucose is completely combusted for 38 ATP of energy। मैंने ही आपको पढ़ाया है ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के विषय में। अगर सिंगल मोल ग्लूकोज का है, 1 ग्राम और ग्लूकोज का बना, तो 1 ग्राम और ग्लूकोज का बनता है, तो इसका जो कंप्लीट डिकम्पोजिशन होता है, पूरी तरह से इसका जो अपघटन होता है, ब्रेकडाउन करता है, टूटता है डिफरेंट फेजेस में। तो पहली फेज के विषय मैंने बताया था कि यहां पर ग्लाइकोलिसिस चलती है, तो सेकंड मैंने बताया क्रेब्स साइकिल चलती है। ग्लाइकोलिसिस के केस में आपने देखा कि 8 ATP एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है और ग्लाइकोलिसिस का लास्ट प्रोडक्ट आपने देखा 2 मोल ऑफ पायरुविक एसिड बन रहा है। और यही 2 मोल ऑफ पायरुविक एसिड में सिंगल मोल ऑफ पायरुविक एसिड या सिंगल मोल ऑफ पायरुविक एसिड क्या कर रहा है कि एक क्रेब्स साइकिल चला रहा है, अंदर मोल ऑफ पायरुविक एसिड अंदर क्रेब्स साइकिल चला रहा है। इट मींस वेरी सिंपल पॉइंट, 2 मोल आपने लिया पायरुविक एसिड और सिंगल मोल अपनी अलग जो है क्रेब्स साइकिल चला रहा है, अलग सिंगल मोल अपनी अलग क्रेब्स साइकिल चला रहा है। इस तरह से आपने देखा कि ये 2 मोल जो है 2 क्रेब्स साइकिल चला रहे हैं, तो 1 क्रेब्स साइकिल के चलने से 15 ATP का फॉर्मेशन हुआ। तो 2 क्रेब्स साइकिल चल रही है, तो 15 मल्टीप्लाई 2 हमने किया, तो इस तरह से 30 ATP एनर्जी आई। सो माय डियर फ्रेंड, जो 30 ATP एनर्जी आई, यही 30 ATP एनर्जी, यही 30 और ऊर्जा 30 ATP एनर्जी वह सिर्फ और सिर्फ क्रेब्स साइकिल से आई और ग्लाइकोलिसिस से 8 ATP आई। तो ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल जब दोनों ये मिलते हैं, तब कहीं जाकर के ग्लूकोज के 1 मोल का कंप्लीट कंबस्शन होता है। जब ग्लूकोज के 1 मोल का कंप्लीट कंबस्शन हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं कि यहां पर टोटल 8 ATP प्लस 30 ATP, टोटल 38 ATP एनर्जी का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यहां पर 38 ATP एनर्जी का फॉर्मेशन हो गया, 38 ATP ऊर्जा का निर्माण हो गया। सो माय डियर फ्रेंड, अगर 38 ATP एनर्जी का फॉर्मेशन हो गया, 38 ATP ऊर्जा का निर्माण हो गया, तो अगला प्रोसेस आप क्या देखते हैं? अब 38 ATP एनर्जी का फॉर्मेशन हो गया, अब ये ATP एनर्जी उसके बॉडी एक्टिविटी के लिए वर्क करेगी, उसके शरीर की क्रिया का विकास करेगी। इस तरह से आपने देखा कि जो प्लांट्स हैं उन्होंने अपने फूड फॉर्मेशन को तो किया, लेकिन द प्रोसेस ऑफ एनाबॉलिक रिएक्शन, एनाबॉलिक रिएक्शन के प्रोसेस के थ्रू उसने ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर दिया है। और देख के क्या रहे हैं, हमारे लिए उसने क्या रिलीज किया? ऑक्सीजन रिलीज किया। माय डियर फ्रेंड्स, ऑक्सीजन रिलीज किया। ये पेड़ पौधे हमारे लिए कितने हेल्पफुल हैं।
आपने देखा कि रूबेन हासिद और कॉमेन तथा इन्होंने कहा, निकोलस थियोडोर डे सेसू और रूबेन हासिद कॉमेन ने 1940 में कहा कि लिटिल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इट गिव्स लाइफ फॉर अस, ए लिटिल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इट गिव्स लाइफ फॉर अस। थोड़ी सी ऑक्सीजन की मात्रा ही हमें क्या देती है? जीवन देती है। सो माय डियर फ्रेंड, यहां पर आपने देखा कि जो ऑक्सीजन निकली वही ऑक्सीजन हमको जीवन दे रही है। ऑक्सीजन निकल कहां से रही है? पौधों के अंदर फूड फॉर्मेशन की। पौधे अपना भोजन भी बना रहे हैं, तो भोजन बनाने के साथ साथ वे ऑक्सीजन भी दे रहे हैं। वही ऑक्सीजन हमको जीवन देती है। पौधों के द्वारा जो निकली हुई ऑक्सीजन है वही हमको जीवन देती है। माय डियर फ्रेंड, हम उसको क्या देते हैं? ज़कात क्या करते हैं? निकालते क्या है? उसको देते क्या है? हम उसे क्या देते हैं? हम उसे देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। और जो कार्बन डाइऑक्साइड हम देते हैं वही कार्बन डाइऑक्साइड लेकर को फिर से हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो हमारे और पौधों के बीच एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, एक कोरिलेशन है, एक सहसंबंध है। हम उसको कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं, वह हमको ऑक्सीजन दे रहा है। हम अपनी बॉडी से टॉक्सिक गैस को रिमूव करके उसको दे रहे हैं हमारी फ्रेंड्स। विषाक्त गैसें हैं हमारे बॉडी के, अगर ये ब्लड के साथ काफी समय तक कोआगुलेट कर जाए, ब्लड के साथ मिक्स हो जाए, ब्लड को कोआगुलेशन पावर दे देती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है, जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, जो हमारी बॉडी के लिए हमने सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको पढ़ाया है कि हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है। और यहां की प्रोसेस का ये देख क्या कर रहा है कि हमने उसको कार्बन डाइऑक्साइड दिया, उसने हमको उसके एवज में क्या दिया? ऑक्सीजन दिया। तो यह रिएक्शन हो गया एनाबॉलिक रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन हुआ? एनाबॉलिक रिएक्शन। तो आप एनाबॉलिक रिएक्शन के प्रोसेस में आप देख सकते हैं कि यहां पर ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो गया, यहां पर ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो गया। अब ग्लूकोज के कंप्लीट कंबस्शन से मैंने बताया कि 3881 मोल अगर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, 1 मोल ग्लूकोज है, तो कंप्लीट कंबस्शन के प्रोसेस के परिणाम स्वरूप आपको 38 एटीपी एनर्जी देगा। और साथ ही साथ हमको जीने के लिए ऑक्सीजन भी दे रहा है, साथ ही साथ हमें जीने के लिए ऑक्सीजन भी दे रहा है। अगले प्रोसेस में ये देखते हैं, अगला हमने दिया है हमारा जो अगला प्रोसेस आप देख सकते हैं यहां पर जो मैंने लिखा है, आइए देखते हैं ध्यान से। हमारा जो पांचवा जो है पॉइंट है वह है केटाबॉलिक रिएक्शन। केटाबॉलिक रिएक्शन माय डियर फ्रेंड, केटाबॉलिक रिएक्शन या जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है जो प्लांट्स ने अपने फूड फॉर्मेशन के लिए यूज किया, या हमारे बॉडी में जो हम फूड को लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के अंदर लेते हैं, उससे जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, जब हम रिस्पायरेशन की क्रिया में इंस्पायरेशन करते हैं, इंस्पायरेशन मींस मिक्सचर ऑफ गैसेस को बॉडी के अंदर लेते हैं, तो उसमें से ऑक्सीजन को हमारे लंग्स के एल्वियोलाई कैच कर लेते हैं। एल्वियोलाई पूरी तरह से ऑर्टरी से कैप्चर होती हैं, ये उसके अंदर जो ऑक्सीजन है उसको कैच कर लेती हैं। और यह हीम के द्वारा कैच किया, मैंने बताया है आपको, एक हीम का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैच कर लेता है। तो इस तरह से ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो आया हमारे बॉडी में आया, यही ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आप देख सकते हैं कि ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को कंप्लीटली कंफ्यूज कर दिया। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को इसने कंप्लीटली कंफ्यूज किया। अब जब ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कंप्लीटली कंफ्यूज्ड हो गया, इसने क्या फॉर्मेशन दिया? हमने क्या दिया? वी हैव रिलीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और एनर्जी जो मिली आपको, उस एनर्जी को हमने स्टोर कर लिया, वो एटीपी के फॉर्म में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में हमारे बॉडी के अंदर स्टोर हो गई। और रिलीज क्या किया हमने? कार्बन डाइऑक्साइड को हमने रिलीज किया। सो माय डियर फ्रेंड, हमने पेड़ पौधों को तो कार्बन डाइऑक्साइड दिया जो हमारे बॉडी से टॉक्सिक गैसेस के फॉर्म में बॉडी से बाहर आए, और पेड़ पौधों ने हमको क्या दिया? ऑक्सीजन दिया। ये दोनों स्टेप आप देख सकते हो, हमने दोनों स्टेप दिया है। यहां पर मैं रेड पेंसिल्स को आइडेंटिफाई कर दे रहा हूं, आप ये देख सकते हैं कि यहां पर ये ऑक्सीजन दे रहा है, हम उसको क्या दे रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं। आप बताइए कि हमारे और पेड़ पौधों के बीच एक कोरिलेशन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। हमने उसको कार्बन डाइऑक्साइड दिया, उसने हमें ऑक्सीजन दिया। This is a simple and very intellectual points of the living word. यही लिविंग वर्ड है कि इसमें फूड नेट भी चलता है, फूड वेब भी चलती है, फूड चेन भी चलती है।
फूड चेन चल रही है तो फूड चेन के थ्रू अपना फूड एडाप्टेशन कर रहा है। ग्रास को लिया ग्रास हॉपर ने, ग्रास हॉपर को लिया जो है फ्रॉग ने, फ्रॉग को लिया स्नेक ने, स्नेक को लिया हॉक ने। आपने देखा कि यह हॉक डिकम्पोजर ले जाएंगे, आपने देखा कि एक चेन चल गई। लेकिन क्या यह आवश्यक है कि हमेशा चेन से ही सर्कुलेशन हो, हमेशा चेन से ही एडाप्टेशन हो? विदाउट चेन क्या हम सर्वाइव नहीं कर सकते? जब तक यह सोचा जाए कि ये स्नेक फ्रॉग को तभी खाएगा जब तक फ्रॉग ग्रास हॉपर को नहीं खा लेता। क्या स्नेक सर्वाइव कर पाएगा? नेवर। उसको सर्वाइव करने के लिए फूड वेब में जाना पड़ेगा, नेट में जाना पड़ेगा, जाल में जाना पड़ेगा। अगर उसे मेढक नहीं मिला तो एंडर एनिमल तो मिल रहे हैं ना, स्मॉल कैटेगरी के इंसेक्ट मिल रहे हैं ना, उनको खाएगा, उनका भक्षण करेगा। बट प्राइमरी कंज्यूमर जो होंगे, प्राइमरी कंज्यूमर जितने भी होंगे सब हर्बीवोरस होंगे, सभी शाकाहारी होंगे, सभी जो है डिपेंड करेंगे प्रोड्यूसर के ऊपर। और जब प्रोड्यूसर जो है हो जाता है तो इस तरह से आपने देखा कि वो उसके ऊपर निर्भर करके अपने लाइफ साइकिल को क्रिएट करते हैं। माय डियर फ्रेंड, इस तरह से मैंने जो आपको जो है बताया आज लिविंग वर्ड्स के विषय में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो मैंने दिया आज आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अक्सर ये क्वेश्चन राइज किया जाता है क्लास 11th की बुक का पहला लेसन और क्लास 9th की बुक का, कि सजीव और निर्जीव क्या होते हैं, ये मैंने बताया आपको। उसके विषय में एक्टिविटीज क्या होती है मैंने बताया आपको, कि लिविंग वर्ड क्या है, द लिविंग वर्ड है क्या, ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता के समझाया। तो मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी अपने YouTube चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी के माध्यम से मैंने आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर करके रख दिए कि इतने पॉइंट्स हैं। व्हाट इज लिविंग्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग्स, A living being is an open system, anabolic reaction and catabolic reaction. इतने प्रोसेस होते हैं ए लिविंग वर्ड में, इतने प्रोसेस होते हैं कि ये द लिविंग वर्ड, अगर लिविंग वर्ड का डिस्कस कर रहे हैं तो इतने प्रोसेस को आपको डिस्कस करना ही करना होगा। तो आप लोग इसको एक एक करके नोट करते रहिएगा, इसका जो है फेयर कंप्लीट करिए, इसको नोट बनाइए आप लोग, और इस सारे पॉइंट्स को आप लोग जो है स्टडी में ले लीजिए कि लिविंग वर्ड होता क्या है और इसके कितने पॉइंट्स हमको डिस्कस करने होते हैं। माय डियर फ्रेंड, अगर आपने जो है एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं दिया तो आप लिविंग वर्ड को कंप्लीटली डिस्कस नहीं किया। आपको यहां तक पहुंचना है, यहां से चलना है। व्हाट इज लिविंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग्स, a living being is an open system, anabolic reaction, then last catabolic reaction। यहां तक आप पहुंचेंगे तब कहीं जाकर के टॉपिक आपका कंप्लीट होगा। सो माय डियर फ्रेंड, माई सेल्फ अलीमुद्दीन शेख कादरी अपने YouTube चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी के माध्यम से मैंने जो है जितने भी टॉपिक्स रहे वो सब आपके सामने क्लियर करके रख दिए हैं। और मैं आज आप सभी को एक बार फिर से क्रिसमस की हार्दिक बधाई देता हूं और इसी के साथ आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करता हूं और नेक्स्ट लेक्चर हमारा नेक्स्ट डे होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।